हम प्रयास करेंगे सबको जोड़ने का। As a young Algerian, I followed avidly and with pride the nomination of Houari Boumediene as president of the Non-Aligned Movement in 1973. A movement which is the brainchild of Pandit Jawaharlal Nehru and which is as relevant today as it was when it was founded through its principles of liberty of people, equality among nations, multilateralism, and mutual non-aggression. India can no doubt reap tremendous economic gains by developing policies and strategies that focus on making even more effective use of knowledge to increase the overall productivity of the economy and the welfare of the people. India has many of the key assets for making this transition to a knowledge-based economy. It has a critical mass of skilled, English-speaking knowledge workers, especially in the sciences. The list goes on. Macroeconomic stability, a dynamic private sector, sound and effective institutions, including the civil service, a well-developed financial sector, and a broad and diversified science and technology infrastructure. The development of the ICT sector in recent years has been remarkable. भारत अस्मिता आचार्य श्रेष्ठ, जो प्रबंध शिक्षा और शोध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष ये पुरस्कार IIM कलकत्ता के निदेशक श्री शेखर चौधरी को प्रदान किया गया। Having just received an award, and of course I don't think that I really deserve it as a person, because it is all because of the work that the institute, all my colleagues have done. Otherwise, everybody, my students, everybody. So it's not myself, but I think it's a good recognition, and people, those who see, they also feel that yes, teaching is something which is being recognized. Yes. Of course, I never thought I will get such. It was just a bolt from the blue, when I was informed that I'd been selected. So I think there is a place, but I mean, nobody, and most people, I don't think they work for awards. So when people talk about management, one normally thinks of business management, but strategic management and innovative management. These are new terms. And this has been your area of expertise, and a major contribution has come from you in these areas. I won't claim that, because there are so many other researchers in this area. I have done my bit, I've done something, and I would say that in the area of looking at management of technology from a strategic perspective, there I have made some contribution, and at IIM Ahmedabad I started a new program, management development program on management of technology for the first time, and I continued that for several years. Then, because starting with my thesis, doctoral thesis was on acquisition and assimilation of technology, and I looked at it from a strategic perspective, and that I would say, I mean, even being immodest, that I brought in the technology dimension in the strategic management area, and I would say that is something which I'm very proud of. And a lot of doctoral theses have been done in the same area. I have myself guided several students at IIM Ahmedabad. भारत जन प्रतिनिधि श्रेष्ठ पुरस्कार, जो संसदीय प्रणाली और प्रजातंत्र के प्रोत्साहन के लिए किसी युवा नेता के विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस वर्ष ये पुरस्कार सांसद भावना गावली को दिया गया है। काम करते करते जब ऐसा कुछ सम्मान होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा महसूस होता है, और काम के वजह से तो मिला है, इसलिए सबसे। आप राजनीति में बहुत कम उम्र में आई, मुश्किल से 25 वर्ष की थी जब आई, तो राजनीति की तरफ ये रुझान कैसे हुआ? मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रही हूँ, तब से जो स्टूडेंट के लिए काम किया करते थे तब से मैं जुड़ी हूँ, तब से काम कर रही हूँ, और ये लगा कि जैसे हम
स्टूडेंट होके काम कर रहे हैं तो राजनीति में आके भी समाज के लिए और ज़्यादा काम कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। हमारा जो देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस वक्त जो डेमोग्राफिक्स है 35 के आसपास सबसे ज़्यादा लोग हैं जो इस बार हम वोटर आईडीज में देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में यूथ सामने आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, और आ भी रहे हैं। आप देखिए लोकसभा में भी बहुत सारी यूथ अभी बढ़े हैं, असेंबली में भी यूथ बढ़े हैं, और उसके कारण होगा देश में जो कमी है अभी काम करने वाले एनर्जेटिक लोग होने चाहिए। तो वो लोग जुटेंगे 35 साल की उम्र वाले जो है उससे थोड़ा आगे वाले, तो काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। My only hope, and I'm sure it would not be a vain hope, is that their examples will be emulated in each one of the fields, whether it is science and frontier technology, whether it is management, whether it is public affairs, or whether it is taking awareness to the common man and woman and child in India. Because what we need, and I think we are aware as Indians, that while on one side we touch Olympian heights in achievement, on the other we also realize that a very great deal needs to be done. The challenge is to bridge that gap. And that gap can be bridged by being inspired by the examples that we have witnessed today and in previous years, and I'm sure in years to come. And my only advice, particularly to the younger people, is to emulate the examples, follow in their footsteps, go beyond them, and make each one of us even prouder. Thank you very much. बुधवार शाम कार्यक्रम इवनिंग लाइव शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित अरोड़ा और मैं हूं शिखा सचदेवा। नमस्कार जी। और अगर आज के इस अंक की बात करें तो सबसे पहले शिखा आपसे पूछना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट लीडर्स की बात होती है, बिजनेस लीडर्स की बात होती है, और ऐसे लीडर्स बनाने के लिए कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स व कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, लेकिन क्या कोई राजनेता भी स्कूल जाकर राजनीति सीख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल है ऐसी ही नेता की पाठशाला। जरूर इसके बारे में बताऊंगी तुम्हें और अपने दर्शकों को। लेकिन आज है 4 फरवरी, तारीख की बात की जाए, आज है 4 फरवरी, तो क्या खास है आज की तारीख में, डालते हम इस पर एक नजर। आज ही के दिन 4 फरवरी 1922 को भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ। किराना घराने से संबंधित पंडित जी अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए जाने जाते हैं। पंडित जी ने ख्याल गायन के साथ साथ अभंग और भजन गायन में भी महारत हासिल की है। उन्होंने फिल्म बसंत बहार में मन्ना डे और बिरबल माय ब्रदर फिल्म में पंडित जसराज के साथ अपनी आवाज का योगदान दिया, और इसके साथ ही तानसेन और अनकही फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। पंडित जी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
संगीत जगत में बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। पंडित भीमसेन जोशी ने 19 वर्ष की आयु में सार्वजनिक मंच से अपनी कला का प्रदर्शन किया था और उनकी ये यात्रा अभी भी जारी है। आज ही के दिन 4 फरवरी 1938 को विश्व विख्यात कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ। वे भारत में कथक नृत्य के लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने की अनमोल निधि हैं। उन्होंने कथक नृत्य विधा को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। उन्होंने विश्व भर में हजारों कथक प्रस्तुतियों के साथ ही कथक के विद्यार्थियों के लिए सैकड़ों कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान और अनेक पुरस्कारों सहित पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में उन्होंने नृत्य निर्देशन के साथ-साथ 2 गीत भी गाए। दिल तो पागल है और गदर, इसके साथ-साथ 2002 में प्रदर्शित फिल्म देवदास में उन्होंने नृत्य निर्देशन भी किया। सो हैप्पी बर्थडे टू पंडित भीमसेन जोशी। और पंडित बिरजू महाराज जी को भी हम सभी की ओर से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल। और जहां तक 4 फरवरी की बात है तो आपको बता दें कि आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज विश्व कैंसर उन्मूलन दिवस है और आज का दिन अवेयरनेस फैलाता है कैंसर के उपचार को लेकर। और बात होती है हेल्दी डाइट की, बात होती है कि ओवरवेट हम ना हो क्योंकि इससे हमारा डिजीज का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल। अगर जागरूकता की इतनी बात की जाए तो सबसे पहले सभी यूथ जागरूक होते हैं करियर के बारे में। तो हमारे सेगमेंट करियर गाइडेंस में आज हम बात करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में। क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस है, क्या जॉब स्ट्रक्चर है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे करियर सलाहकार जतिन चावला। साइबर क्राइम की अक्सर बात होती है और बहुत जरूरी है कि हम समाज में रहते हुए इससे लड़ें और साइबर क्राइम की रोकथाम में अपना योगदान दें। बात अगर साइबर कैफे की करें तो आज हर एक शहर के नुक एंड कॉर्नर में एक साइबर कैफे होता है। ऐसे में साइबर कैफे को जो लोग चला रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, यदि आज मैं किसी साइबर कैफे जाता हूं तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या मुझे आई कार्ड दिखाना चाहिए, किस तरह का लॉगिन रखना चाहिए उन लोगों का जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे राजेश छारिया, आप प्रेसिडेंट हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। और यदि साइबर कैफे और साइबर क्राइम से जुड़ी इसी विषय पर आपका भी कोई प्रश्न है तो 5:45 से लेकर 6 बजे तक आप हमें स्टूडियो में फोन कीजिएगा इस नंबर पर 2309-7532, दैट्स 2309-7532। दिल्ली से बाहर से फोन करें तो 011 अवश्य लगाइएगा। तो तुम पूछ रहे थे कि क्या ऐसी पाठशाला है जहां पर हमारे नेताओं को शिक्षा दी जाए। बिल्कुल ऐसी ही एक नेता की पाठशाला जहां पर ग्रूम किए जाएंगे प्रोफेशनल पॉलिटिकल लीडर्स। क्यों अमित? बिल्कुल सही बात। अगर राजनेताओं की और राजनीति की करें तो इनका एक बहुत गहरा असर पड़ता है हम सभी के रोजमर्रा की जिंदगी में। और किस स्कूल में जाके जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं सीख सकते हैं और राजनेता बन सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज हैं राहुल विश्वनाथ कराज जी और आप डीन हैं, संस्थापक हैं MIT SOG के। क्या है ये स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ये देश की पहली संस्था है राजनीति का प्रोफेशनल एजुकेशन। मतलब आप जानते हैं अपने देश में सभी क्षेत्र में इंजीनियरिंग से लेके मैनेजमेंट से लेके मेडिसिन से लेके हर क्षेत्र की कमी पूरी करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ये एक ऐसी संस्था 2005 में MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से पुणे में शुरुआत की गई। इस संस्था की TN सेशन जो कि देश के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी अध्यक्षता में इस संस्था की स्थापना हमारी संस्था के द्वारा की गई। और इस संस्था के द्वारा हमारा ये प्रयास है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि राजनेता बन सकते हैं क्या, राजनीति की पाठशाला, मतलब ये सबसे पहले क्वेश्चन है। लेकिन भारत की परंपरा इतनी, मतलब आज हमें भले ही इसका आश्चर्य लगता है कि भाई राजनेता ऐसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आर्य चाणक्य से लेके मतलब कई सालों से अपने देश की परंपरा है कि राजनीति का प्रशिक्षण बहुत सालों से दी जाती थी। लेकिन पिछले समय में अभी ऐसा कहा गया, मतलब कई अभी मेरा ऐसा अनुभव रहा कि मतलब अभी एजुकेशन का अगर एक एजुकेशन सेक्टर की अगर बात की जाए तो मतलब 22-25 साल के कई सारे एजुकेटेड नौजवान 200-300 करोड़ की इंडस्ट्री संभाल सकते हैं। लेकिन राजनीति में आने के लिए कई बार मतलब उम्र के बारे में की भी बात की जाती है कि भाई एक तजुर्बा चाहिए आपको, बाकी सब कुछ